جانی ٹی وی دیکھنے والے سبھی دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ دوستو، یہ بات ہے 12ویں صدی کی، جب وسط جاپان سے کچھ لوگوں نے مشرق کی جانب ہجرت کرنا شروع کر دی۔ ساحل سمندر پر جا کر ان لوگوں نے اپنے اپنے ڈیرے ڈال لیے۔ یہ لوگ سمندر پر جاتے، مچھلیاں پکڑتے، واپس اپنے گھروں میں آ کر سو جاتے۔ زندگی بڑی پرامن گزر رہی تھی۔ جاپان کے اس حصے میں کاماکورا کی حکومت تھی اور یہ شہر بھی اسی بادشاہ نے بنوایا تھا، جبکہ آج اس بادشاہ کے نام پر الگ سے ایک شہر بھی قائم ہو چکا ہے۔ کاماکورا اپنے قبیلے والوں کے ساتھ جب یہاں پہنچا تھا تو اس مقام پر ایک دریا سمندر میں گر رہا تھا۔ یہ منظر دیکھتے ہی کاماکورا کے منہ سے بے اختیار نکل پڑا، ایدو، ایسی جگہ جہاں دریا سمندر میں کھل رہا ہو، جاپانی اسے ایدو کہتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا، لوگ ہنسی خوشی مچھلیاں پکڑ کر اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ سن 1600 عیسوی چل رہا تھا۔ جاپان کے اس حصے میں آخری جاگیردارانہ فوجی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ اس سلطنت کو تاریخ میں توکوگاوا شگون شاہی کہا گیا ہے۔ توکوگاوا در حقیقت جاپان میں بسنے والا ایک قبیلہ ہے اور اسی قبیلے کے نام پر یہ حکومت قائم تھی۔ اس قبیلے والوں کی جانب سے جب کسی فوجی ماہر کو اعلیٰ ترین عہدے پر فائز کیا جاتا تھا، اسے شگون کہا جاتا تھا۔ توکوگاوا ایسو کو جب اس سلطنت کی فوج کا سربراہ بنایا گیا تو اس نے ایدو نامی اس شہر کو فوجی قلعے کے طور پر استعمال کیا اور ان دنوں سلطنت کے دارالحکومت کا درجہ کیتو شہر کو حاصل تھا، مگر جغرافیائی اعتبار اور فوجی طاقت ہونے کی وجہ سے اس شہر کو ہی دارالحکومت کے مقصد کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا۔ سن 1867 میں جب شگون حکومت کا خاتمہ ہوا تو اگلے سال ایدو شہر کو ملک کا نیا دارالحکومت بنایا گیا۔ مشرق کی جانب ہونے کی وجہ سے اس شہر کو توکیو کا نام ملا، چونکہ تو کا مطلب مشرق اور کیو کا مطلب دارالخلافہ تھا، لہٰذا ان الفاظ کے معنوں میں اس شہر کو توکیو کا نام دیا گیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس شہر نے اپنے قیام کے وقت سے آج تک ایسے حادثات سہے ہیں جو کبھی کسی شہر کے پل بھر میں خاتمے کا سبب بن جاتے ہیں۔ 1 دسمبر 1923 ہفتے کا دن تھا، دوپہر کا وقت تھا۔ ٹوکیو کے جنوب کی طرف 80 کلومیٹر کے فاصلے پر زمین پھٹ پڑی۔ ہر طرف عمارتیں زمین بوس ہو چکی تھیں۔ ریکٹر سکیل پر اس زلزلے کو 8.3 کی شرح سے ماپا گیا۔ اس زلزلے کے بعد ٹوکیو شہر کی 75% عمارتیں ناکارہ ہو چکی تھیں۔ اس وقت ٹوکیو شہر کی آبادی 45 لاکھ کے لگ بھگ تھی۔ کم و بیش اس حادثے میں 1.5 لاکھ افراد موت کی وادی میں اتر چکے تھے، مگر اس شہر اور اس شہر کے باسیوں نے ہمت نہیں ہاری۔ ایک نئے جذبے اور لگن سے اس شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے ہر کسی نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ کیا خبر تھی کسی کو کہ ان کی یہ محنت بہت جلد بیکار جانے والی ہے۔ ابھی پہلی جنگ عظیم کا اثر ختم نہیں ہوا تھا کہ دوسری جنگ عظیم کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں، مگر ان سب سے بے خبر اہل ٹوکیو ایک دفعہ پھر سے تباہ و بربادی کے دہانے پر پہنچ چکے تھے، کیونکہ اب ان پر وہ وقت آنے والا تھا جب امریکہ اور چین کے طیارے اس شہر کو تباہ کرنے کی سوچ رہے تھے، اور پھر 18 اپریل 1942 کے روز یہ سوچ حقیقت میں بدل دی گئی۔ دوسری جنگ عظیم میں جاپان کا سب سے پہلے تباہ ہونے والا شہر بھی یہ ٹوکیو شہر ہی تھا۔ تاریخ میں امریکہ اور چین کے اس حملے کو ڈو لٹل ریڈ یا ٹوکیو ریڈ کہا گیا ہے۔ نومبر 1944 میں ایک دفعہ پھر سے اس شہر کو نشانہ بنایا گیا اور ان 2 سالوں میں ہونے والے حملوں میں صرف ٹوکیو شہر میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے، جبکہ 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے نقل مکانی کر لی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت کی جاپانی حکومت نے پڑھے لکھے افراد اور اساتذہ کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا تھا، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ اگر اساتذہ نہ رہے تو پوری قوم مل کر بھی وہ مقام حاصل نہیں کر سکتی جو ایک استاد کا ہوتا ہے، اور اگر اساتذہ بچ جاتے ہیں تو پھر یہ ایک ترقی یافتہ قوم دوبارہ بنا سکتے ہیں۔ یہ اس وقت کی جاپانی حکومت کا وہ عظیم فیصلہ تھا جس نے جاپان کو تباہ و برباد ہونے کے باوجود بھی کمزور نہیں ہونے دیا۔ دوستو، 1964 میں پہلی دفعہ اس شہر کو سمر اولمپکس کا میزبان بنایا گیا تھا۔ 1970 سے 80 کی دہائی تک دنیا کی بڑی بڑی کمپنیوں نے اپنے دفاتر اس شہر میں کھول لیے تھے، اور یہی تھا اس شہر میں جاپان کی کامیابی کا راز۔ یہ تو تھا اس شہر کا ماضی، لیکن اگر ہم اس شہر کے موجودہ دور کی بات کریں تو اس شہر کو جاپان کا سب سے بڑا شہر ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہو چکا ہے۔
टोक्यो शहर जो इस वक्त जापान का दारुल हुकूमत है 2187 मरबा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है। इस शहर की आबादी 3,80,80,000 अफराद से कुछ जायद है। ये आबादी टोक्यो के शहरी और देहाती यानी सारे टोक्यो की आबादी है। इस लिहाज से दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर इंडोनेशिया का शहर जकार्ता है, जिसकी आबादी 3,22,72,000 अफराद के करीब है। तीसरे नंबर पर इंडिया का दारुल हुकूमत दिल्ली और इसका देही इलाका है, जिसकी आबादी 2,72,80,000 अफराद है। लेकिन अगर सिर्फ शहरी इलाकों पर बसने वाली आबादी का जिक्र किया जाए तो फहरिस्त कुछ बदल सी जाती है। जापान के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा आबादी वाले जजीरे होन्शु पर वाक़ टोक्यो नामी इस शहर के बारे में अगर दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो ये जापान का वो शहर है जहां पर हर साल नाकीज़ूमो क्राइंग फेस्टिवल के नाम पर बच्चों को रुलाने का एक मुकाबला मुनक्किद करवाया जाता है, जिसमें वालिदैन अपने बच्चों के हमरा मुकाबले में शिरकत करते हैं और अपने बच्चों को हर मुमकिन तरीके से रुलाने की कोशिश करते हैं। सबसे ज्यादा देर तक रोने का फैसला करने के लिए साथ एक रेफरी भी होता है। जीतने वाले बच्चे को 15,000 जापानी येन और बेशुमार तोहफे दिए जाते हैं। टोक्यो शहर में हर साल अप्रैल के महीने में होने वाले इस त्यौहार को अब बहुत ज्यादा मकबूलियत मिल चुकी है, लेकिन वहीं पर बहुत से अफराद इस अमल को इंसानियत की तजलील होना भी कहते हैं और इस त्यौहार में शिरकत करने से गुरेज करते हैं। दोस्तों, आज का टोक्यो शहर इतना बड़ा है कि इसे इंतजामी तौर पर चलाने के लिए इसे 23 तहसीलों में तकसीम किया गया है। हर तहसील को शहर का दर्जा दिया गया है और हर शहर को चलाने के लिए अलग अलग से इंतखाबात के जरिए सिलेक्शन होती है। 664 मीटर बुलंद टोक्यो स्काई ट्री टावर को दुनिया का सबसे लंबा ब्रॉडकास्टिंग टावर होने का एजाज भी हासिल है। शायद आपको इस बात का इल्म ना हो कि जापान की 3 बड़ी यूनिवर्सिटीज में उर्दू की तालीम व तदरीस के लिए शोबे भी कायम हैं। इन 3 बड़ी यूनिवर्सिटियों में से 2 टोक्यो शहर में कायम हैं। अब आप यहाँ यह बात सोच रहे होंगे कि भला जापानियों के इस शहर में उर्दू क्यों कर होगी, तो आपके इस सवाल का जवाब भी मैं देता चलूँ कि जापान में अंदाज़न 10,000 पाकिस्तानी तालीम और मुलाजमत की गर्ज से वहाँ पर मुकीम हैं। पाकिस्तानी जो अपने बच्चों को उर्दू तालीम दिलवाना चाहते हैं, उनके लिए उर्दू और इंग्लिश में अलग से स्कूल भी कायम हैं। उर्दू के शोबों का जापान की 3 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में होने की असल वजह जापानी सनतकारों की दूरअंदेशी है, क्योंकि उन्हें अपनी मसनूआत बेचने के लिए तकरीबन 4 करोड़ उर्दू बोलने या समझने वालों से वास्ता पड़ता है। चूंकि जापानी अंग्रेजी जुबान पर ज्यादा अबूर नहीं रखते, इसलिए वो अपने शहरियों को उर्दू सीखने के मौके फराहम करते हैं ताकि आगे चलकर यही तुलबा उनके मुतरजम के काम सर अंजाम दे सकेंगे। जापान में कमोबेश 10,000 पाकिस्तानी मुकीम हैं, मगर शायद आपको इस बात का इल्म ना हो कि 70 पाकिस्तानियों ने जापानी खवातीन से शादी भी कर रखी है। ये पाकिस्तानियों की वो तादाद है जो कानूनी तरीके से जापान में रह रहे हैं, लेकिन 15,000 से जायद पाकिस्तानी ऐसे भी हैं जो गैर कानूनी तरीके से जापान में मुकीम हैं। 20% पाकिस्तानी जापान के इस शहर टोक्यो में ही रहते हैं, जबकि गैर कानूनी तरीके से जाने वाले टोक्यो शहर से जरा किनारा करके ही जाते हैं। पाकिस्तानियों का टोक्यो में सबसे बड़ा कारोबार पुरानी कारों को खरीदकर वापस अपने मुल्क एक्सपोर्ट करना होता है। टोक्यो भले ही 3 करोड़ से ज्यादा आबादी वाला शहर है, मगर एक अंदाजे के मुताबिक गैर मुल्की मुलाजमीन के लिए इस शहर को दुनिया का सबसे महंगा शहर भी तस्वर किया जाता है। टोक्यो शहर में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। 2 मजीद एयरपोर्ट मिलिट्री मकासद के लिए भी हैं, जबकि इस शहर में मुल्की परवाजों के लिए अलग से 7 दूसरे एयरपोर्ट्स भी कायम हैं। इस शहर में सफर का बेहतरीन जरिया रेल को समझा जाता है। इस शहर में कुल छोटी बड़ी 121 रेल की लाइनें बिछाई गई हैं। रेल के निज़ाम के साथ साथ 12 केबल कारें भी अलग से मुसाफिरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में अपना किरदार अदा कर रही हैं। बसें, ट्रैम, टैक्सियां और फेरी इन सब के अलावा है जो हर रोज़ हज़ारों मुसाफिरों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करती हैं। दुनिया की सबसे मकबूल 3 कंपनियां जो जापान के इसी शहर टोक्यो में कायम हैं और आज दुनिया के कोने कोने में इनका एक नाम बन चुका है, वो कुछ ये हैं। होंडा के नाम से जानी जाने वाली एक कंपनी से तो आप लोग खूब वाकिफ होंगे, वो भी इसी शहर में कायम है। कैमरे और बहुत सी दूसरी दीगर मसनूआत बनाने वाली फ्यूजी नामी कंपनी भी इसी शहर में कायम है। सोनी मोबाइल, सोनी टेलीविज़न और दसियों मजीद सोनी की प्रोडक्ट्स बनाने वाली सोनी कंपनी का जन्म भी इसी शहर में हुआ है।
दुनिया के बेहतरीन क्वालिटी वाले कैमरे नाइकॉन, कैनन, एप्सॉन, पैनासोनिक, ओलंपस, पेंटेक्स और केसियो कंपनी इसी शहर की मरहूने मिन्नत है। टोक्यो में औसतन हर 12 मीटर के बाद एक वेंडिंग मशीन लगी हुई है। हैमबर्गर से कपड़ों तक, कैंडी से कोल्ड ड्रिंक्स तक, मिल्क पैक से आइसक्रीम तक, तकरीबन रोज़मर्रा इस्तेमाल की हर चीज़ आप इन वेंडिंग मशीन से हासिल कर सकते हैं। लोग अमेरिका को वेंडिंग मशीनों के लिहाज से कैपिटल समझते हैं, मगर हकीकत में वेंडिंग मशीनें सबसे ज़्यादा जापान में और जापान के इसी शहर टोक्यो में नस्ब की गई हैं। 1985 में टोक्यो शहर में कायम होने वाला शिंजुकु रेलवे स्टेशन दुनिया का सबसे बड़ा और मसरूफ तरीन रेलवे स्टेशन है, जहां से औसतन एक दिन में 37 लाख मुसाफिर सफर के लिए निकलते हैं। टोक्यो स्काई ट्री टावर, जिसे टोक्यो टावर भी कहा जाता है, फ्रांस के एफल टावर से तकरीबन मिलता जुलता है, जबकि एफल टावर से यह 13 मीटर बुलंद है। टोक्यो टावर को हर 5 साल बाद दोबारा रंग किया जाता है और हर बार 7500 गैलन रंग को इंसानी हाथों की मदद से किया जाता है। इस अमल को मुकम्मल होते तकरीबन 1 साल लग जाता है और यह टावर एफल टावर से 78 साल बाद तामीर किया गया था। अमनो अमान और सयाहों के लिए बेखौफो खतर शहरों की फहरिस्त में टोक्यो का शुमार टॉप के शहरों में होता है। टोक्यो में गैर मुल्कियों और मुल्की अफराद की शॉपिंग पर टैक्स आयद नहीं किया जाता, मगर शर्त यह है कि वो दिन में कम से कम 5000 जापानी येन खर्च करें। इसके बाद किसी भी किस्म का सर्विस टैक्स, जीएसटी या दूसरा कोई भी टैक्स वसूल नहीं किया जाता है। टोक्यो शहर में शिबुया क्रॉसिंग बहुत फेमस है, क्योंकि यहाँ पर एक वक्त में 1000 से ज़ायद लोग इस सड़क को क्रॉस करते हैं। ये एक अलग बात है कि जापान के ही एक शहरी को सबसे उम्र रसीदा होने पर गिनीज रिकॉर्ड से नवाजा गया था, लेकिन ऐसा ही कुछ फ्रॉड हुआ था साल 2010 में, जब टोक्यो शहर में सरकारी एहलकार एक वफ्द के हमरा एक घर में मौजूद एक फर्द की 111वीं सालगिरह मनाने गए थे और हुकूमत की जानब से जारी करदा इनामात भी साथ ले गए। मगर जब वो वहां पर पहुंचे तो ये देखकर हैरान रह गए थे कि जिस बुजुर्ग के लिए वो इतनी तैयारियां करके आए हैं, उसे तो मरे हुए 30 साल का अरसा हो चुका है, मगर इसके घर वालों ने उसे मरा हुआ डिक्लेयर ही नहीं किया था, क्योंकि वो इस मरने वाले की हर माह पेंशन ले रहे थे। टोक्यो ने 1940 में यानी जंग अजीम ओवल के आगाज के दिनों में पहली बार ओलंपिक्स खेलों की मेजबानी की थी। कुछ ही सालों में इस शहर को तबाह कर दिया गया, मगर इस शहर ने कई बार दुनिया के आलमी मुकाबलों की मेजबानी भी की है। शायद आपको इस बात का इल्म ना हो कि दूसरी जंग अजीम से पहले जापान ने वाशिंगटन को चेरी के दरख्त तोहफे में दिए थे। दूसरी जंग अजीम में तबाही के बाद जब इन दरख्तों का इस शहर से वजूद खत्म हो गया, तो अमेरिका ने दोबारा से जापान को चेरी के पौधे दिए, जो टोक्यो शहर की दोबारा तामीर के मौके पर लगाए गए थे, और फिर यहीं से मुल्क के दूसरे हिस्सों में इन पौधों को पहुंचाया गया था। दुनिया के 22 ममालिक में कायम 7-Eleven के नाम से मौजूद स्टोर्स जो बहुत मकबूल हैं। आपको पता होना चाहिए कि इन स्टोर्स का आगाज करने वाला एक टोक्यो का रहायशी था, जो बाद में अमेरिका में मुंतकिल हो गया था। यही वजह है कि टोक्यो शहर को 7-Eleven का गढ़ भी माना जाता है, क्योंकि सिर्फ टोक्यो शहर में 2089 7-Eleven स्टोर कायम हैं। क्या आपको मालूम है कि जब हिरोशिमा शहर पर एटमी हमला किया गया था, तो 3 घंटे तक टोक्यो में मौजूद हुकूमती एहलकार इस बात से बेखबर थे कि हिरोशिमा अब खत्म हो चुका है। लेकिन आज टोक्यो शहर दुनिया के अमीर तरीन शहरों में से एक है। अगर आज इस शहर को सिटी स्टेट डिक्लेयर कर दिया जाए, तो इस शहर का शुमार जीडीपी के हवाले से दुनिया भर में पहले नंबर पर होगा। दोस्तों, ये थी दिलचस्प मालूमात पर बनाई गई टोक्यो शहर के बारे में हमारी एक खूबसूरत सी वीडियो। ये वीडियो अगर आप दोस्तों को पसंद आए तो इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक वॉल पर लाजमी शेयर करें। इसी के साथ साथ इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना हरगिज ना भूलें। आप दोस्तों से मुलाकात होगी बहुत जल्द ऐसी ही किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।